बिग पॉपुलर स्टेटमेंट कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता, आप बताएं जरा। आप बताइए, आप मर्द हैं, आप बताइए। मैम होता है, बिल्कुल होता है। वो मदर होती है जो अपने छोटे बच्चे को कहीं गार्बेज में छोड़ देती है, कहीं मार देती है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, बट व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, अपोलोजाइज। ओके। उनकी सेफ स्पेस बनो कि उनको पता है अगर मैंने कुछ गलत किया वहां जाके सही गाइडेंस मिलेगा। जैसे पार्टीशन का ट्रॉमा अभी तक चल रहा है। First and foremost thing I want to tell to the youth is that your issues, your challenges, your problems are real. They might not look real to adults, but they are real. वो केमिकल लोचा बिल्कुल रियल है। Our emotional health is directly होना नहीं चाहिए because वो तो फिजिकल नहीं था ना। हाथ उठाना फिजिकल है तो आंसू आया, समझ आया। बट उसने तो सिर्फ बोला, मुझे आंसू क्यों आया? मैं ये करूंगा, सबको दिखा दूंगा, देखो आई वॉज नॉट दैट लूजर। या लेकर मैंने कि जैसे मैं हूं वैसा ही चाहिए। स्पोर्ट्स, सो आई विल मेक फ्रेंड्स फ्रॉम एथलीट और स्पोर्ट्स कम्युनिटी। मैं कहती हूँ क्यों? देन व्हाट विल यू डू व्हेन यू गो टू अ पार्टी? क्या करोगे वहां? बैडमिंटन खेलोगे? अगर इश्यूज है, जिसको टेम्परामेंट इश्यूज है, उसके मुंह से निकल रहा है कि तुम्हें अल्फा होना चाहिए। मतलब व्हाट आर आवर स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर आवर स्टैंडर्ड्स? आई नीड टू आस्क दैट टू माई सेल्फ। थोड़े दिन पहले मैं ऐसे बैठी हुई थी, गार्डन में गार्डनिंग करी थी, अचानक से मेरे दिमाग में चल रहा है, दिल तो पागल है, दीवाना है। जिस होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चे को अपने 3 से 5 साल तक 0 स्क्रीन टाइम दे दो। नीड एंड यू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन। डोंट गो ऑन टिंडर रोज जूते लात मार तमीज आ रहे Yeah. यहाँ पे। Ending on a point. What is happiness? Let's say, leave people with some smiles and cheerfulness. What is happiness? It's an umbrella. It's an umbrella you're holding on your head. Whatever you put inside it, that makes you happy. Ladies and gentlemen, welcome to Podcast with Champions with your host Navjot Singh. As in the previous episodes, also, we have been bringing people from different walks of life who have lived a life less ordinary. जिन्होंने अपने काम के जरिए, अपने वैल्यूज के जरिए हम सबको इंस्पायर किया है to live a life of some value. And today we have a very, very special guest, and it is an honor to host Aruba Kabir ma'am, who happens to be a counseling psychologist, and she is certified in cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, acceptance and commitment therapy, and a lot of other things to her credit. She is the founder of Enzo Wellness, which was founded in 2015. She has more than a decade of experience in this field, and she has been doing exemplary work, which is recognized by various organizations. She has been awarded at various fora, and she happens to be a panelist in various platforms when it comes to issues related to mental health, emotional well-being, and overall creating a society that is more lovely, more lovable, and full of affection and kindness for the people around. So welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Such wonderful introduction, Avjot, and thank you so much for having me. It's an honor, ma'am. So, ma'am, as we we advertised that we would be having a podcast on mental health. So हमें बहुत सारे queries आए, particularly youth से. So we will start from that. There has been this case going around about Miss Shah, Miss Seth actually, yeah. She killed her infant. So let's start from that. I mean, what is it कि ये a mother who is the epitome of love and affection. So what is that situation that takes a mother to kill her own child? ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण एक सिचुएशन है, बट इसके अंडरलाइंग जो साइकोलॉजिकल जो बायस है या सिचुएशन है जिसकी वजह से शी बिकेम फोर्स टू डू सच थिंग, बिकॉज हमें पता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और वो केसेस आते हैं. सो आप थोड़ा सा एज अ साइकोलॉजिस्ट इस चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डालें जरा. Thank you so much for asking such a wonderful, such a strong question. बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में बात करना। चाहे वो मिस सेठ हो, चाहे वो एक फादर हो जिन्होंने अपने 2 ट्विन्स को मारा,
चाहे वो मदर होती है जो अपने छोटे बच्चे को कहीं गार्बेज में छोड़ देती है या कहीं मार देती है। एंड वी क्वेश्चन इट कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, एक पिताजी ऐसा कैसे कर सकते, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, जिनसे आपका तो काम है प्रोटेक्शन करना, आपका तो काम है प्यार करना, फिर आप कैसे करते हैं? बट आई गेस बहुत सारे रूट कॉज होते हैं। जब श्रद्धा वाकर मर्डर का केस हुआ था, जब वो केस हुआ तो लोगों ने उस लड़के को बोला कि क्या उसमें एम्पैथी नहीं थी, क्या उसमें इंसानियत नहीं थी? Yes, absolutely. There are emotional instabilities in a human being जिसकी वजह से lack of empathy होती है, impulsivity बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको right और wrong का जो वो boundary है वो खत्म हो जाता है, जो सेठ के साथ हुआ कि उन्होंने एक बच्चे को, चाहे उन्होंने वो गुस्से में किया, रिवेंज के लिए किया, किसी चीज के लिए, बट कौन चाहेगा गुस्से में रहना? कौन चाहेगा तकलीफ के थ्रू जाना? कुछ तो इमोशनली आ रहा है, उनको सही नहीं लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न। देयर कुड बी मेनी रीज़न, जैसे अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। जब भी एक मदर प्रेग्नेंट होती है, उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से शी गोज़ थ्रू ऑल द पेन्स एंड एक जो प्रेगनेंसी के साथ आते हैं। या वेट गेन आता है, या आपके मूड स्विंग्स आते हैं, या आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस ऑक्सीटोसिन की वजह से आप वो कर पाते हैं। बट काफ़ी सारे मदर्स के साथ हम देखते हैं कि उनके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। उनका अपना बचपन से हो रहा होगा, अपनी ज़िंदगी जो चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में भी उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। एंड देन व्हेन दे डिलीवर द चाइल्ड, देयर इज़ अ पीरियड कॉल्ड बेबी ब्लूज़, हर मदर को होता है। बिकॉज़ वो एडजस्टमेंट पीरियड होता है एक औरत का अपने बच्चे के साथ करने का। आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, पहले आपका बच्चा अंदर होता, बाहर आ गया, तो थोड़े बेबी ब्लूज़ होता है, 2-3 हफ्ते होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यू विल स्टार्ट feeling, falling in love with your child and want to hold that child and be there for the child. वो नेचुरल आएगा, तब तक मे बी मदर कॉन्शियसली करती है, बट फिर वो आ जाता है। लेकिन अगर वो बेबी ब्लूज़ नहीं जाते हैं, आपको एक कंटीन्यूअस फीलिंग होती है कि आई डिड नॉट वांट टू हैव दिस चाइल्ड, और इस बच्चे ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, या ये बच्चे को मैं पालना चाहती हूँ बट मेरे को सोशल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिजिकल सपोर्ट नहीं है। रात-रात भर आपको जगना पड़ता है, आपकी इरिटेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद आपके जो पार्टनर के साथ लड़ाइयाँ होती है, वो रहती है, तो ऐसा चांस आ सकता है। आप जब भी परेशान होते हैं, यू अटैक ऑन द वीकेस्ट, और उस रिलेशनशिप में वीकेस्ट एक बच्चा होता है। आप डाँटते भी उसी को हैं, थप्पड़ भी उसी को मारते हैं, चीटिंग भी उसी के साथ करते हैं, और यहाँ पर भी हमें नहीं पता वेदर मारा, नहीं मारा। इट इज़ स्टिल अ केस वी शुड नॉट से कि हाँ, बट अगर देखा जाए, इज डज अ मदर हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग देयर चाइल्ड? शी इज मदर लेटर। पहले तो वो एक इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है। दिस वी फॉरगेट, वी पुट पीपल इन रोल्स। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई, ये टीचर है, ये गुरु है, ये थेरेपिस्ट है, क्लाइंट है। ऑल दीज आर रोल्स। एक माँ का एक रोल है, इट इज नॉट द होल आइडेंटिटी। शी इज एन इंडिविजुअल जिसका एक रोल माँ है, बट अगर इस इंडिविजुअल का अपना इमोशनल और मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा, शायद वो ये रोल नहीं निभा पाएगा। राइट राइट। टीचर की जिंदगी में बहुत परेशानियां होंगी, मे बी दे विल नॉट बी अ गुड टीचर, बट दैट डज नॉट मीन शी इज अ बैड टीचर, शी इज अ बैड पर्सन। तो हम शायद रोल नहीं निभा पाते। क्या एक माँ अपने को मार सकती है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव कैपेबिलिटीज, अमेजिंग कैपेबिलिटीज, वर्स्ट के। बाकी फैमिली का क्या रोल रहेगा? बिकॉज हम देखते हैं कि थोड़ा सा इट मे बी बिकॉज ऑफ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पार्टनर और द फैमिली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द मदर इज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। उस वक्त उनके जहन में किस तरह की दुविधा से वो जूझ, जैसे आपने बताया कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट नाउ शी हैज डिलीवर्ड, वो जो ट्रांजिशन फेज है उसमें हाउ कैन वी फैसिलिटेट द मदर ताकि उनका वो ट्रांजिशन थोड़ा सा स्मूथ रहे? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी वी सी इन आवर सोसाइटी, थोड़ी सी फीमेल्स को ओप्रेस किया जाता है जनरली। मतलब वी डॉरी के केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं। अदरवाइज भी वी अंडरस्टैंड दैट शी इज नॉट बीइंग केटर्ड टू इन अ वे, अपार्ट फ्रॉम दी एफ्लुएंट फैमिलीज होंगी जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है।
the families which are not well to do, or maybe you know growing up in slums, or maybe in less disadvantaged places, तो उन तरह के लोगों के लिए हम जागरूकता पैदा करने के लिए और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए किस तरह का एक मतलब हम आगे कैंपेन कर सकते हैं, या किस तरह से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं? सबसे पहले तो आई गेस इट इज अ मिथ कि प्रिविलेज फैमिलीज में, एफिलेंट फैमिलीज में ये इश्यूज नहीं होते, ओके, because I ओके, cater to a class which is above average, ओके, जो ओके, हमारे क्लाइंट्स हैं, और उनके भी ऐसे इश्यूज होते हैं कि ऑलराइट, ऑलराइट. लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में नहीं बनती, पार्टनर और So we पार्टनर are के बीच breaking a few myths here as well. में। इट्स अ मिथ जो हमें लगता है पैसा आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है चीजें तब ठीक होती है जब चीजें ठीक होनी होती, जब आप करते हैं, है ना? Right. तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास से, रिलीजन से आए हैं, कौन Mhm. सा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। बट हाँ, Right. जहाँ पे लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, जहाँ पे ऑलरेडी द स्ट्रेस इज अबाउट रात को खाना नहीं मिलता है, तो शायद वो वहां पर Mhm. एक सरप्राइज ना दे पार्टनर को। बट मैं लोगों को कहती हूँ वहां पे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही होती है। अगर आपका एक Mhm. स्ट्रगल है कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका ये नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी गिफ्ट करे। आपका शायद ये Mhm. होगा मेरे हस्बैंड बस शाम को खाना लेकर आ जाए, उसी से मुझे खुशी मिलेगी। तो आपकी Mhm. एक्सपेक्टेशन उसी के अकॉर्डिंग होती है। बट हैविंग सेड दैट व्हाट कैन वी डू? देयर वाज़ अ टाइम जब एक औरत जब प्रेग्नेंट होती थी, 3-4 महीने के बाद उनको अपने मायके भेज दिया जाता था। दैट वाज़ द सपोर्ट जो ओल्ड एज में, ओल्ड टाइम्स में प्रोवाइड होता था कि आप अपने घर Mhm. जाइए, आपको थोड़ा काम अच्छा कम रहेगा, पॉजिटिविटी आस-पास रहेगी, खाना-पीना अच्छा Mhm. मिलेगा, तो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड और आपका जो बेबी होगा वो अच्छे से हेल्दी तरीके से आप Right. बॉन्ड कर पाएँगे। There's a proverb which says, "It takes a village to raise a child," and that is true. Actually true. आज That's के very wonderful statement. न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ये सेटअप बढ़ गया है, जिसकी वजह से द पेरेंट्स फील इट इज़ टू मच, और उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है घरों में, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड जस्ट बाय योरसेल्फ। तो अगर आपके Mhm. आसपास कोई ऐसा इंसान है जो प्रेग्नेंट है, आप सोचिए उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस है, उनके सपने, उनके जो ख्वाब होते हैं वो बैक सीट लेते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है उसमें भी इश्यू आ रहा होता है, अब मैं क्या हूँ? सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है दैट यू हैव टू एम्ब्रेस प्रेगनेंसी, यू हैव टू एम्ब्रेस मदरहुड। तो वो प्रेशर भी होता है। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, बी काइंड टू देम। इफ दे आर इरिटेटेड, अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। उनको एक Mhm. लैंडिंग ईयर दे, आप सुने उनका प्रॉब्लम है, रादर देन एडवाइजिंग देम, नहीं 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 ऐसा मत सोचो। अरे अब सोच आ रही है, सुन लो ना उनको, क्या पता वो चली जाए फिर। Maybe help Right. them with exercise, maybe help them in Mhm. therapy session, Right. मेडिटेशन कराएँ उनको, एक अच्छा-सा योगा सेशन करा दें उनका। ऑल Mhm. दीज़ थिंग्स, उनको टाइम से खाना दे दें, उनको रेस्ट का दे दें, उनको बोले कि ठीक है आपका करियर अभी थोड़ा पीछे हो गया है, ठीक हो जाएगा, Mhm. आगे फिर आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट यू हैव Mhm. चोज़न एज़ ऑफ नाउ। There could be many ways how we can support a person. We just have to know that how is that person wanting that support? उनको क्या लग Mhm. रहा है? Ask the person, how can I support you better? What would you like me to do? Do you want me to take you for a walk or make you some soup? क्या करूँ मैं Mhm. ऐसा? But having an understanding that it is not a big deal for a woman to produce a child because her Mhm. body is made up for that. What is a big Mhm. deal is that going through that journey with this emotional stability. बॉडी तो उसकी Absolutely. बनी है, बट आप Mhm. जो ये आगे पीछे निटी-ग्रिटी करते हो ना उसके, कि अब ये नहीं Mhm. किया, अब वो नहीं हुआ, अब ये करो, अब ये करो, उसकी वजह से जो स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी वजह से बात Mhm. खराब होती है। All right. All right. All right. ऊपर वाले ने Ma'am, how much? हुँ, Uh-huh. जी, या, जी. या, Please carry on. नो, नो, या, So what I हुँ, was asking, how much has it to do with, both the parents are working these days, women and men both are working. So because you are handling lot of work में आप काम पे stress होता है आपको, then so how do you translate it into parenting की तरफ अगर हम आए यहाँ से कि parenting का वहाँ कितना उस पे असर पड़ता है, because
as we say, we give them severance, we give them money, we give them, maybe you have this iPad, you just play, you don't give them love and affection and attention that a child needs. तो उसमें ये जो न्यूक्लियराइजेशन का ये जो कल्चर है, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, फिर आपका ये जो अभी टेक वर्ल्ड, अभी जिसको हम सोशल मीडिया वर्ल्ड इज सो मच प्रोलिफरेटिंग नाउ, तो उसमें किस तरह के ये जो डायनामिक्स किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं कि चाइल्ड बेटर पेरेंटिंग, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, मतलब ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट? It's like a very tricky question. Yeah, it is indeed, indeed. It is actually. See, I feel that when we were, जब हम पुराने ज़माने में रहते थे, जब हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे, बड़ी फैमिलीज़ में रहते थे, तो चीज़ें भी ऐसा नहीं था, स्ट्रेस वहाँ नहीं था। वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े होते थे, वहाँ भी स्ट्रेसेस बड़े होते थे, बट वी यूज्ड टू नेविगेट इट समहाउ। ऐसा नहीं है कि मेरे जॉइंट फैमिली से जो क्लाइंट्स मेरे जॉइंट फैमिलीज़ में रहे, उनको ट्रॉमा नहीं है, उनको भी ट्रॉमा है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहे, वो खुश नहीं है, वो बढ़िया है, खुश है, वो भी अच्छे से रहे हैं। I feel that yes, is it a pressure for the parent? Absolutely. क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिशन का ज़माना बढ़ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना बढ़ गया, टेक्नोलॉजी यूँ चेंज होती है, यूँ अपग्रेड होती है, बट हमारा ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट वायर्ड लाइक दैट। इट टेक्स टाइम टू अडैप्ट, टू अपग्रेड। Absolutely. वो जो वो फियर ऑफ फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑल द टाइम, कि मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया, वो एक पेरेंट के अंदर भी होता है। But having said that, it is absolutely possible to balance it, because what children need is quality than quantity, जो most parents को नहीं पता। अगर आप आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट्स एवरी डे आपके बच्चे के साथ दिल खोल के पूरे अटेंशन के साथ खेलते हैं, जो ग्रोथ आती है, इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड स्पेंडिंग द होल डे चाक 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 करके उनको डांटते रहना, क्योंकि वो जो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप उनको देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन द क्वालिटी दैन क्वांटिटी, नंबर वन। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेरेंट। अगर आप सोचेंगे मैं वर्कोहॉलिक हूँ और ग्लोरीफाई उसको करते हैं, ना आप अच्छे पेरेंट बनेंगे, ना आप अच्छे इंडिविजुअल बनेंगे, और आपको मेंटल और इमोशनल स्ट्रेसेस आएंगे ही आएंगे। You need to have that balance where you are exercising, where you are taking care of yourself, where you're taking that break, you are meeting your friend, or you are having your circle active, alive. Not too much, but every now and then those breaks are important for mother and father both. आपका बच्चा भी हेल्दी बैलेंस सीखता है, आपके बच्चे को भी पता है, oh, it's important to exercise, look at them, they're so happy. So बच्चे, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के हीरो होते हैं, they look up to you. And now if you are failing that, emotional instabilities aati hai. I am not asking you to be perfect all the time, but when you make a mistake, apologize. I'm not asking you to know everything, but when you don't know something, let them know, I don't know this, I'll come back to you. You are a human being, you were never trained to be a parent, and you are a parent today, you need to learn that parenting ना, तो सीखोगे ना साथ साथ में। किसी ने टाक 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 स्क्लप्टिंग करके थोड़ी भेजा था आपको कि चलो बन गए। आपको आईटी में ट्रेनिंग दी जाती है, तभी तो आप इतनी टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, यहाँ पर नहीं मिला उस। सो लर्न विद द प्रोसेस, but you can have all this when you feel secure within, when you have confidence within, when you feel that yes, I can do it. It's very important to focus on quality rather than quantity. Ma'am, along with that, we have seen that, these days, because of the lack of attention from the parents, बच्चे क्या गलत चीजों में, गलत संगत में चले जाते हैं, because they don't get that love and they don't feel free to share things with their parents, and so they find a conduit somewhere outside. तो वहां पे sometimes they may get a good friend who will guide them correctly. Sometimes they may fall prey to certain other tendencies. Like my mama always says that, become best friends with your children. So I think that is what parenting is about. Maybe allowing your children to share their heart out with you, so that they don't need to search something outside. क्योंकि बाहर आप देखिए ड्रग एडिक्शन का मैम काफी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी आपने सर्टन रिपोर्ट्स आई वाज रीडिंग, तो बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ रही है। तो वो भी ये चीजें हैं, अल्कोहलिज्म है, गलत संगति है, वैल्यूज आपकी रोड हो रही हैं, ये सब चीजें। इसका मतलब हम कैसे, हम इस चीज को बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को भी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि
थोड़ा सा हम इस चीज से बच्चों को पीछे खींच के लाएं ताकि गलत डायरेक्शन में वो ना जाए? I have a belief system that don't try to become best friends or friends with your children. They are ओके, not your friend. You don't have to be friends with them. Try to ओके, be their safe space. ओके, उनका सेफ स्पेस बनो कि उनको पता है अगर मैंने कुछ गलत किया वहां जाके सही गाइडेंस मिलेगा। अगर राइट, मैंने राइट। किया है मैं जाके शेयर कर सकता हूँ। एक अथॉरिटी भी बनी रहे बिकॉज़ अ पेरेंट नीड्स एन अथॉरिटी। आप सोचो मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ बड़ी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके? नाउ अपने बेस्ट फ्रेंड को वो धक्का भी देता है, गाली भी देता है, बात भी नहीं सुनता है। अब वो मेरे साथ कोशिश करता है, दैट टाइम आई एम लाइक बिहेव, आई एम योर पेरेंट। It's a राइट। confusion in the child's head that what do you want me to be? काफी बार पेरेंट्स बच्चे को तुम अभी बच्चे हो तुम्हें नहीं पता। अरे बट सुबह तो आपने बोला मैं आपका फ्रेंड हूँ, वो कहाँ गया? अभी मैं बच्चा कैसे हो गया? है ना? So I don't think that we need to be best friends with our children till a certain age. आप 20-25 आते हैं, you sit and have a drink together, that's absolutely okay. By then आपने जो डालने थे वो आपने डाल दिए। By then आपका बच्चा वहां तक पहुंच गया। But when we try to give these confusing mixed signals to children, they don't know where do they belong. एक ओके, टाइम वी पे they are क्लैरिटी इज safe. इम्पोर्टेंट, क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। Clarity is very important. Clarity is important. So don't try to become friends with them. Try to be a friendly parent. Try to provide them the safe space. Try to राइट। listen to them and actually understand that they are individuals who have brain. अगर उनका अपना दिमाग है तो वो अपने तरीके से सोचेंगे और उनकी सोच आपसे अलग हो सकती है। They are not your राइट। property because you produce them. They are your children who are souls, who are individuals, who have their own identity. They might not be good in what you have been good in. At the same time, they might not repeat the same mistakes which you have repeated. तो आप किस चीज से डर रहे हैं? तो आपको तो डरने का सवाल ही नहीं है। So when you create this safe space around them and have an understanding, become a conscious parent. I'm parent to two dogs. I have two dogs. So आप उनको बहुत प्यार करते हैं और आप उनको सब कुछ देना चाहते हैं, आप उनको ट्रीट्स भी देना चाहते हैं, खाना भी देना चाहते हैं, ऑल द टाइम खेलना चाहते हैं उनके साथ। बट अगर मैं उनको ज़्यादा ट्रीट्स खिलाती हूँ, उनका पेट खराब हो जाएगा। अगर उनको ज़्यादा खिलाती रहूँ, तो शायद उनके बोन्स एंड जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। शायद अगर मैं उनको हर गलती उनकी माफ़ कर दूँ, शायद वो मेहमान के साथ बदतमीज़ी करेंगे। I want to be a conscious parent. I want to understand that I would want to give so much of love and understanding and protection to this child, but is it good for them? यस। उनका खाना खिलाना उनको अपने हाथ से, is it good for them? हर चीज़ उनके लिए करना, is it good for them? हर चीज़ पे राइट। टोक good for them. So when you एब्सोल्युटली। have a child, you need to think about the child more than you think about yourself. Don't अपना सेल्फ वर्थ डिफाइन करने की कोशिश मत करो बच्चों के थ्रू। मेरा बच्चा फर्स्ट, इट मेक्स मी अ गुड। कम ऑन, आपका बच्चा फर्स्ट आया, 0 आया, वो उसी पे फ़र्क पड़ता है। आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। So राइट, stop. राइट, राइट। It's very तो important मैम, to create safe space. absolutely, absolutely. I mean, I think Buddha's Madhyam Marg is absolutely the right way to be. Avoid extremities of anything. Just try to strike a deft balancing between being a strict parent and a liberal Yeah. parent. So somewhere in between, just get them into the right frame of things so that wo prosper kare. Too much watering a plant may make it, and less watering also. So that is similarly, I think that is very rightly pointed out. And ma'am, how do you see generational trauma affecting, us? I mean, what is this concept of generational trauma? Generational trauma actually concept is getting wider. People are becoming aware of it and they understand it better. For example, अभी मेरे parents हैं, अगर मैं जैसे I will just give an example of my own father. So he was telling me other day कैसे कश्मीर में एक टाइम पे स्लेवरी हुआ करती थी और कैसे उन गाँव में जो लोग होते थे उनको अपना चप्पल सरहाने के नीचे रखना होता था कि कभी भी बुलावा आ सकता है राजा का और हमें जाके स्लेवरी के लिए बेगारी के लिए जाना है। Now, they were the people who lived in fight and flight mode. Now, could they have
parents or good brothers or good family member. They were always in difficult, fight and flight. तो difficult. वो सर्वाइवल में थे हमेशा. तो Mm-hmm. आपके पेरेंट्स सर्वाइवल में रहे, दैट इज व्हाट दे गेव यू. Mm-hmm. तो वो ट्रॉमा जिया तो उन्होंने, स्लेवरी के लिए वो लोग गए, बट आया तो वो आपके अंदर भी ना, अपब्रिंगिंग से. Mm-hmm. ऐसे ही अगर मेरी मदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता है किसी की मदर की लाइफ में बहुत ट्रॉमा होता है, मे बी दे लॉस्ट देयर पेरेंट, और मे बी इन लॉज के साथ बहुत इशू था, एंड वो जो वो गुस्सा निकला बच्चे पे आया, चाहे वो पैसिवली आया, एक्टिवली आया, इमोशनल नेग्लिजेंस आया, या Mm-hmm. ओवर प्रोटेक्शन आया. तो Mm-hmm. आपके हस्बैंड के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आपके हस्बैंड को आपकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्होंने नहीं निभाई, तो आप अपने बच्चे के थ्रू वो पूरी करना चाहते हैं. तो आपका बच्चा जो है, आपका जो बेटा या बेटी है, दे आर ट्राइंग टू गिव यू व्हाट देयर फादर कुड नॉट गिव यू. तो वो भी तो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा है ना. तो ये जनरेशन Mm-hmm. में चलता रहता है until we Mm-hmm. don't decide, we don't come to a point that listen, this has been going on for years. जैसे पार्टीशन का ट्रॉमा अभी तक चल रहा है, वॉर्स का ट्रॉमा Absolutely. मैं देखती हूँ. पार्टीशन के एक Absolutely. क्लाइंट मेरे, एक पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था, एंड ही स्टिल लिव्स विद दैट फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म. Mm-hmm. ये जो ये होते हैं, चाहे वो ग्लोबल चेंजेस हो, चाहे वो इमोशनल फैमिली चेंजेस हो, ये हम पास करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. Mm-hmm. देयर आर पीपल हु वुड से दैट my tests are fine. I have never had any emotional negligence done by my parents. सब अच्छा रहा है, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी सैड रहती हूँ. तो फर्स्ट Mm-hmm. थिंग, आस्क योर मदर हाउ वाज द प्रेगनेंसी. क्योंकि Mm-hmm. प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वो पास ऑन हो जाएंगे. आपके Right. हार्मोन हेल्दी हो सकते थे, नहीं हेल्दी. सो Mm-hmm. दिस इज द रीजन वी टेल पीपल, वंस यू बिकम अवेयर ऑफ इट, generational traumas hai, start working on it, start cutting ties with that, know that I Mm-hmm. want to release baggage. जब आप अपने आप को हील करते हैं, बेटर करते हैं, वो जनरेशंस में चला जाता है वो हीलिंग. वेल, Mm-hmm. पर्सनली आई फील दैट अगर आप अपने आप को हील कर दे, बहुत बड़ी बात है. आप खुद को Mm-hmm. करें, बहुत बड़ी बात है. बट इट इज नॉट अबाउट एनी, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि कोई मैजिक कि आप यहाँ हील करें आपकी मदर हील हो गई. नहीं, आपने हील किया, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. जब आपकी मदर आवाज ऊंची करती है, या विक्टिमाइज करती है, या वो ताना देती है, आप Mm-hmm. समझते हो कहाँ से आया, आप उसमें Mm-hmm. इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपने वो कर्मा तोड़ा. अभी तो Mm-hmm. वैसे Right. कर्मी लोग है. इट इज ऑल अबाउट Exactly. कर्मा राइट नाउ. Right. So we need to be doing those karmas, breaking those chains, and it does impact us. लोग माने ना माने, but फर्क पड़ता है. थेरेपी में हम देखते हैं, रिसर्चेस हुए हैं, generational trauma, intergenerational trauma is for real and it does impact you. And letting go of things is absolutely the right thing to do. Letting go of anything or everything that doesn't bode us well. Yes, There's वो that does. proverb है ना, if you want to fly, let go of what weighs you down. So this is kind of intergenerational trauma is kind of that weight we are carrying somehow. And Yeah. carrying on with the intergenerational trauma, what is this thing with the childhood trauma, childhood sexual abuse, physical abuse, and not these things? How what is what is how can children and parents become aware of this, that what is not right and what is wrong? Uh, because small kids, they don't understand what it is. So Hmm. how can they be conscious of this thing? Because that is happening, and that may leave a lasting impression on them. We can cure it बाद में, ठीक है, अब trauma है, उसको overcome करना है, but it can have a lasting impression on the cognitive growth as well. You become Absolutely. fearful, you become fearful, you don't have that courage to go full Monty. So what is your take on this one? So first of all, we need to understand that there is something called inner child. Now, inner child is a Right. part of me when I was younger. When I was younger and helpless, dependent, especially my first 7 to 10 years of life, or maybe 15, 18, depending on the family culture. So, but ये 7 साल का जो होता है, that is the time when my consciousness is built. So I have mind, and this mind is just mind. There is no conscious and subconscious. So in these 7 years,
the conscious mind, the frontal lobe of my brain gets developed. एंड जो भी मेरा अब तक एक्सपीरियंसेस है, मैंने आसपास देखा है, सीखा है, वो सब मेरे सबकॉन्शियस में चला जाता है, विच इज द बैक ऑफ माई हेड. नाउ अगर इन 7 years में इफ आई हैव फेल्ट सेफ, loved, accepted, cared for, then I will have strong personality because foundation मेरी strong है अब. Now, how do I get this safety, stability in my life? Do parents have to be with me 24/7? No. No. There are stages when a child becomes that मुझे खुद सब करना है. I want to cross the road by myself. I want to brush my teeth by myself. I want to eat by myself. लेकिन parents क्या करते हैं? तुमको नहीं आएगा. रुको, तुम गलत कर रहे हो. जो टोका टोकी रहती है बच्चे को, आप उनका कॉन्फिडेंस बिगाड़ते हैं. Learn the balance. If you are a new parent, I do counseling with so many people who are planning a baby or are pregnant. They come and they're like, how can be a better parent? How can be mindful? What do I need to do? There are so many ways you can learn how to have that balance. Life बहुत मुश्किल हो गई है. पुराने जमाने में शायद आपको सिर्फ एक बच्चा पैदा करना होता था उस टाइम पे, आपको और काम नहीं होते थे या घर संभालना होता था. अभी आप घर भी संभाल रहे, बच्चा भी कर रहे, पैसे भी कमा रहे, सोशलाइजेशन में भी है, दुनिया के साथ भी कीप अप कर रहे. अभी बढ़ गई है चीजें. सो यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड इन दिस टाइम. अभी आप कैसे करें, क्या करें? जब भी आपका बच्चा, आप देखते हैं कि उसमें कोई एबिलिटी है, अप्रिशिएट देम. जब वो कुछ गलत करते हैं, रादर देन क्रिटिसाइजिंग, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई इज इट रॉन्ग. राइट, मेरे एब्सोल्युटली. पास एक केस आया था जहां पे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को स्कूल में धक्का मारा था, और जिस बच्चे को धक्का मारा था, दे हैव अ प्रॉब्लम इन लेग, दे कांट वॉक वेल. सो इस बच्चे ने उसको धक्का मारा और हंसा, और घर आके बच्चे ने बोला, मम्मी पता है मैंने उसको धक्का मारा, वो तो वैसे भी like was limping, मैंने और धक्का मारा, इतनी सब लोग हंस रहे थे. The mother got worried. The mother got her to me and she's telling, मैडम आप इसको बताइए, this is not the right way. और मैंने बोला, आपने क्या बोला? She said, मैंने उसको बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों को दिक्कत है उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मैंने कहा जिनको दिक्कत नहीं उनको भी नहीं करना चाहिए. एकदम. But I told the child was like, I made the child understand that, listen, if you had a problem in your leg and somebody would have pushed you, how would you feel about it? He said, hurt. He didn't say कि लोग हंसेंगे, बोला I'll feel hurt because I already have a problem in my leg. मैंने कहा that child would have felt hurt? बोला yeah. Oh, what did I do? मैंने कहा so what would you like to do now? बोला I'll go tomorrow and say sorry. मैंने कहा absolutely. Now this child really understands the concept. जैसे हम मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना बच्चे को, 2+2 कैसे होता है, वैसे आपको अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे को समझा पाते हैं, ये जो आप फिर वो कितनी लड़ाइयाँ देखिए आप फैमिली में लड़ाइयाँ तो होंगी, आप डिफरेंट कल्चर्स से है, प्रॉब्लम्स तो होंगी, आपके स्कूल्स में अलग अलग अपब्रिंगिंग से बच्चे आते, इश्यूज तो होंगे. बट इफ यू आर एबल टू गिव क्लैरिफिकेशंस टू योर चिल्ड्रन, boost them with confidence, let them know that they can make any terrible mistake. बच्चा क्या गलती करेगा, किसी का टिफिन खाएगा, झूठ बोलेगा, ये सब, you can make any terrible mistake and come back to me and tell me, we will rectify it, we will see why are we doing it. True. You inculcate those family values you have. Integrity बचपन में सिखाई जाती है, वैल्यूज बचपन में सिखाए जाते हैं, ये आप बाद में डालने. हाँ, some people make it for themselves, that is also true and it is possible, but अगर आप चाहते हैं और अगर आपके पास है वो टाइम और एनर्जी, you can do it by yourself, life will be easier. So you can do in those first 7 years. और जो वो ट्रॉमा हम बाद में बात करते हैं, जो भी फिर लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, they will be able to overcome them faster. बट अगर वो 7 साल हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, it takes us time to overcome those issues. Even as an adult, it takes us time. क्या बच्चों को ट्रॉमास फिर भी होंगे हमारे प्रोटेक्शन, हमारे अनकंडीशनल लव के? एब्सोल्युटली होंगे, दैट इज लाइफ. बट अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी, वो जैसे जानवर जब लड़ाई करते हैं या कुछ उनको चोट लगती है, वो खड़े होते हैं, ऐसे खुद को श्रक करते हो निकल जाते हैं, दैट इज व्हाट विल हैपन. Yes. We will just take it off. Relapse time will be less. Relapse time will be less.
relapses will be less. आगे जाके drug addiction, abuse, instability, looking for that anxiousness, social anxiety will not be there. ADHD, bipolar, these things will not be there. Lack of self-worth also kind of starts Lack of developing when you know. self-esteem, self-worth. That is why they try to go for drugs and alcohol and all these things, because they feel like ashamed of them. They don't have confidence. They feel they're not the right fit. And like So it's like very you said about the drug addiction, I think mm, our society, the perception that society has towards drug addicts, we look down upon them like they are addicts, alcoholists. So rather than that, what should be our approach? Because we have to look them at from a different lens. How can we bring them back? What is it that led them to it? Obviously, if we keep cursing somebody, that somebody is a drug addict and all that, he will go deeper. As a family member or as a close someone who's close, isn't it the responsibility कि हम उनको वापस उस फोल्ड में लाएं, उनकी बात को सुने, मे बी वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार है, ताकि इसीलिए वो ड्रग की तरफ भाग रहे हैं। आप बिल्कुल। क्या आप क्या मानते हैं इसमें? You are never addicted to the substance. You are addicted to what it gives you. आप सिगरेट के साथ एडिक्टेड नहीं है। आपको सिगरेट जो चीज दे रहा है, आप उससे एडिक्टेड है। आप शराब, कैनबिस, जो भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज जो होता है, यू आर नेवर एडिक्टेड टू इट इनिशियली। वो बाद में हमारी बॉडी फिजिकली उसको क्रेव करती है, दैट इज सेपरेट। बट इनिशियली यू वांट रेस्पाइट, यू वांट रिलीफ फ्रॉम समथिंग। समथिंग इज सो मच गोइंग इन योर लाइफ कि आप एस्केप करना चाहते हैं। कुछ लोग हम्म। ओवरवर्क करके वर्कaholic बन के करते हैं, कुछ लोग शाम को बॉटल खोल के उसको एस्केप करते हैं। दैट ऑल ऑल्सो कम्स मेनी थिंग्स लाइक आपके कल्चर में एक्सेप्टेंस क्या है, आपकी फैमिली में एक्सेप्टेंस क्या है, आपने क्या सोचा है इस बारे में, आपने कहाँ से सीखी ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ मैटर करता है कि वाई सम पीपल चूज वर्कaholicism एंड सम पीपल चूज अल्कोहल। इजी हम्म। अवेलेबिलिटी काफ़ी लोगों का ऐसा होता है। सो डिफरेंट पीपल चूज डिफरेंट थिंग्स, but basic is the root cause. So when we work with people, especially when I work with people in addiction, I never work on the addiction, I work on their emotional instabilities. हम इमोशनल इश्यूज पे काम करते हैं, धीरे धीरे खुद ही शराब छूट जाती है। जब इंसान को पता है शराब से आपकी बॉडी खराब होती है, आपका दिमाग खराब होता है, आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपके फाइनेंसेस खराब, क्यों कोई करना चाहेगा? कुछ तो गड़बड़ होगा फिर उसके दिमाग में। अगर हम उस गड़बड़ पे ध्यान देंगे तो ये तो खुद ही चला जाएगा। एकदम। माइंडफुलनेस से तो खुद ही चला जाएगा। एंड व्हाट यू सेड इज राइट। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, we don't have to look down upon them. We need to support them to find their way back. Rather than यार ये तो छोड़े, तो शराब पीता है, saying that यार वो शराब पीता है, क्या हुआ है उसके साथ कि वो इतना शराब पी रहा है? I understand you can't help them, get professionals to help them. आप एक डी एडिक्शन सेंटर में उनको डाल सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं, आपके जैसे बहुत सोशल वर्कर्स होते हैं अवेलेबल, जो दे कैन गेट द राइट हेल्प फॉर देम, दे कैन मोटिवेट देम। बट इफ यू स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, it will not resolve the problem. How is it resolving the problem? There And is something sometimes escape. it happens that they also, I have seen certain people who want to come out this, but sometimes it becomes वो frog syndrome, आपने सुना है ना, कि Hmm, you put the frog in the boiling water, वो पहले नहीं निकलता है, and when it wants to jump out, its muscles are already so weak, तो वो उधर ही अंदर succumb कर जाता है। hmm, तो hmm. उस सिचुएशन में जो लोग फंस चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो चाहते भी हैं बट लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर भी नहीं आ रही है, उनको सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन समटाइम दे आर डूम्ड। We don't know, they don't know, family doesn't know what to do, even they are seeking medication also, all these things, still they are doomed. So उस Hmm. सिचुएशन में, उस एडवर्स सिचुएशन में हम उनको क्या, मतलब हमारा एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग और एज अ मे बी फैमिली मेंबर, हमारा क्या रोल हो सकता है उसमें? See, the first and foremost thing is that I don't think so anybody is doomed if they get the right help. Maybe the help they are getting is not the right help. Is not Okay, right maybe help, okay.
not the right help. Maybe when they are giving the medication for home, but they should have been in the hospital admitted, in the center admitted, being there. But much more than that, people around us make a lot of difference. अगर मुझे सुबह शाम ताने मिल रहे हैं, अरे तू तो शराब पी के बैठा है, तू कहाँ निकल नहीं सकता, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा ये हो गया, that is only pushing them further into it. So you need to be supportive, you need to be careful how you're talking to them. You need to develop patience. You need to become that caretaker or friend around them, which will motivate them rather than being sarcastic or critical. धीरे धीरे आप उनका आईना बने और आप उनको दिखाएं उनमें क्या अच्छी कैपेबिलिटीज है. आप उनके साथ रोज टाइम स्पेंड करें, मे बी हाफ एन आवर प्ले अ गेम विद देम. धीरे धीरे जब वो पॉजिटिव उनको लगेगा, आई एम नॉट बीइंग जज्ड फॉर माई बिहेवियर, maybe they will be able to reduce that chota quantity and they can get out of it. One, the help they are getting, is that the right help? Second, we have to work on ourselves in order to be the best supporter to them. Right. We cannot pour from an empty cup. You can't. We have to fill our own cup first. Now, ma'am, something that the most asked questions that were coming is about from the youth about relationship issues. I mean, relationship issues, depression, anxiety, and also failing in examinations. So all these things coupled, because youth now are in that stage, they are vulnerable to a lot of tendencies. They have to make their careers also because of the social media इतना ज़्यादा rampant है, so they fall prey to such tendencies. तो वहाँ पे they get to a stage where because of these certain betrayals, because certain relationship failures, rejections, they are unable to take that, couple that with lack of family support also. And तो ये सब चीजें जो यूथ है, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, मतलब जो यूथ इस चीज से डील कर रहे हैं? The first and foremost thing I want to tell to the youth is that your issues, your challenges, your problems are real. They might not look real to adults, but they are real. Okay. अगर मुझे कोई टीनेजर बोलता है I don't have a crush, I have not fallen in love, I haven't had a heartbreak, that means something is wrong there. That is the time when you will have crushes. That is the time when you will get attracted to opposite sexes or same sexes, whatever is your sexual orientation. It is the time हार्मोनल चेंज आएगा, आपको कुछ चीजें पसंद आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, आपको बुरा लगेगा, आप थोड़ी इरिटेट रहेंगे. That is that. So your challenges are real. All the challenges are real. But important thing is that the challenges you are facing, अब आप सोचो उन challenges के साथ बैठना है, कुड़ना है, irritate होना है, कि उन challenges को जाके किसी को बताना है और बात करनी है. You are the smartest in your studies. बट यू आर स्टिल यंग और आप अभी सिर्फ एक पॉन्ड में हो, आपको लेक में, रिवर में, ओशन में जाना है आगे. सो आस्क द ओशन वाले को आगे ना. Seek guidance from your elders. Seek guidance from your teachers, your counselors. There are so many amazing motivational speakers, therapists online. Follow them. Don't think that you will be able to resolve it on your own. Fear of failure is real. But remember, आप बचपन से, हम हिंदुस्तान में रहते, हम तो क्लास एलकेजी से एग्जाम्स देते आए हैं. तब वही एग्जाम टफ था, अभी यही एग्जाम टफ है. So remember, you have done it before, you will do it before again. Maybe it is new to you, and getting scared of new thing is natural. आज भी at the age of 36, having spoken on so many public platforms, you put me on the platform, I am okay. But before that, my tummy is telling me, oh Baba, full on anxiety. There is nervousness. Happens. Those, I think 10-20 seconds before your performance is coming, you feel nervous. It happens, ma'am. So you will have exam anxiety, you will have that date anxiety, you will have that performance anxiety, you will have that. But embrace it. It is beautiful. It tells you are alive. Anxiety is not a bad thing if you actually listen to it and calm it down. If you resolve your issues on time. But आपका आज का होमवर्क है, आपके पास टाइम है, आज आप नहीं कर रहे हो, आप 4 दिन के बाद करो, जब और एक होमवर्क है, तो वो एंजाइटी फिर खराब हो जाती. यहाँ पर जो एंजाइटी थी वो अच्छी थी, हेल्दी थी. वहां पर आके एंजाइटी इतनी हो जाएगी, मे बी यू विल फॉल सिक, आप कोई होमवर्क नहीं कर पाए. हम मैनेज नहीं कर रहे हैं टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं.
डू दैट, बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में लड़की अच्छी लग रही है ना, जाके बोलो उस लड़की को तुम मुझे अच्छी लग रही हो। अगर वो ना करेगी तो हटो पीछे, आगे बढ़ो, दूसरी पसंद करो। अगर वो Absolutely. हाँ करेगी है तो आगे बढ़ो उसके साथ। द सेम थिंग, डोंट कीप इट इनसाइड यू। पीछे पीछे से देख रहे हो, अच्छा ऐसे में 1 साल निकल गया, फिर दूसरा साल निकल गया, तो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था वहां। 3 साल के बाद उसको जाके आपने बोला और उसने बोला ना, एंड नाउ द हार्ट ब्रेक इज इंटेंस, बिकॉज 3 साल हुए ना। तो अगर You're आपने carrying 3 साल बोल दिया होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती ना, तभी पता चलता हाँ या ना। सो clarity is वर्क, always good. yeah, work on these things are real, your struggles are real। मेरे लिए शायद अभी अगर 5 लाख हो जाएंगे तो मेरे को शायद तकलीफ होगी, किसी 20s के इंसान के लिए 50,000 की तकलीफ है, आपके लिए 50 रुपए की तकलीफ है, बट तकलीफ सबकी रियल है, मेरी भी, 20s वाले की भी और आपकी भी। मैम ये जो सो इमोशनल जो हमारा पेन होता है, does it translate into physical symptoms also? Because I was watching this web series of Pankaj Tripathi where he had that itch on his ankle, and he used to do many things. बाबा के पास गया, कुछ कुछ ट्राई किया, नहीं ठीक हुआ, and then he went to his psychologist, I think some psychiatrist or something. He told गया तुम्हें कोई बचपन में कोई ट्रॉमा तो नहीं था, कोई चीज है जिसके लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाए हो? So then he looked inwards and he thought कि ऐसा कुछ था, and that healed. So how much is our emotional things, that chemical लोचा जो उसको कहते हैं, वो हमारी बॉडी में भी असर डालता है वो केमिकल लोचा बिल्कुल रियल है। आवर इमोशनल हम्म, हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर फिजिकल हेल्थ। हमारे गट को हम्म, सेकंड ब्रेन कहते हैं। हमारे गट को भी हम्म, सेकंड ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉट ऑफ इमोशंस और नर्व्स आर देयर, राइट। तो हम्म, जब हम इमोशनली कुछ फील करते हैं तो हमें स्टमक अपसेट होता है। जब जैसे हम रात को सोते नहीं तो एसिडिटी हो जाती है, वैसे ही काफी सारा होता है। इसको हम कहते हैं, हम सोमैटिक हीलिंग करते हैं लोगों के साथ, वेयर देर आर फिजिकल हेल्थ इश्यूज बट दे आर कॉज्ड बाय देयर इमोशनल इंस्टेबिलिटीज। Maybe they were हम्म, not, they did not feel loved and accepted, so they developed some skin issues here, hives, low immunity. We see digestive issues, IBS is so common, emotionally induced. A lot of other things are there, cold and cough, frequent cold and cough, allergies, migraines, headaches, cervical, back pains, all these things, a lot of the times, they are because you have been emotionally vulnerable. Once upon a time, I used to work with cancer patients. Not a single cancer patient I have seen till today in this 12 years of career who did not have an emotional instability in their life, a struggle in their life, a trauma in their life. Every time there has been something. It can be loss of a loved one, it can be losing that dream job, it can be as a child feeling was not loved, but there is always an emotional reason. I'm not saying cancer is always an emotional reason, but I'm saying most of the times that is what we see. So it can, if you are not resolving your emotional stress, it is going to manifest. आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसे मारती हूँ तो आपका स्किन ही ऐसा होता है ना, या आपको वाह करती हूँ तो आपका पहला बॉडी ही हिलता है ना। सो पहला लेयर ऑफ कांटेक्ट जो वो तो स्किन ही है। skin. एनी थ्रेट इमोशनल और फिजिकल, आई एम गोइंग टू फील इट। जब मुझे बुरा लगता है, कोई मेरे पे हाथ उठा तो मुझे रोना नहीं चाहिए। हम्म, और मुझे नहीं, जब मुझे पे कोई हाथ उठाए तो मुझे रोना चाहिए, लेकिन जब मेरे को बस कोई बुरा बुरा भला बोले मुझे रोना नहीं चाहिए, बिकॉज वो तो फिजिकल नहीं था ना। हाथ उठाना फिजिकल है तो आंसू आया, समझ आया, बट उसने तो सिर्फ बोला, मुझे आंसू क्यों आया? उसने तो हम्म, बात की और मुझे, उसने इमोशनली बात की, मेरे को फिजिकली आंसू आए। सो हम्म। कनेक्शन डीपली कनेक्टेड है। एब्सोल्युटली मैम। अभी कल एक इंटरव्यू आ रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, हाउ हम्म, आर कॉन्फिडेंस आल्सो, ही हैड अ इशू ऑफ स्टैमरिंग. हम्म, He said that I used to stammer, but when in 2005-6 I started to get some success, so that sense of self worth started coming और मेरी स्टैमरिंग खत्म हो गई. तो हम अच्छा, जैसे बच्चे, अब कोटा में आप काफी मैम सुसाइड के केसेस आते रहते हैं, और भी 12th में किसी बच्ची के मार्क्स अच्छे नहीं आए या कोई एग्जाम में फेल हो गए तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड्स तक कमिट कर लेते हैं. तो हम अपनी सेल्फ वर्थ किसी एक एग्जाम से
जोड़ के रख लेते हैं, किसी चीज से जोड़ के रख लेते हैं, उस चीज को हम कैसे ओवरकम कर, बिकॉज कई बार क्या होता है काफी देर तक बच्चे, जैसे जम्मू में भी हमने देखा एमबीबीएस की तैयारी करते हैं बच्चे, 2-3 साल ड्रॉप ईयर भी लेते हैं, फिर भी नहीं होता कई बार, तो फिर वो थोड़ा सा डिप्रेशन होता ही, ऑब्वियसली सेटबैक तो लगता है। अब उसको डिप्रेशन में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, वो हम कैसे हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि उस वक्त अपने इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करें इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज मैम बट स्ट्रेस तो रहेगा, बट स्ट्रेस तो नवजोत, रहेगा। उस टाइम का नहीं है ना, वो तो आपके, कोई बोलता है कि when people come to work with us regarding money, every person has a different answer when we ask them what does money mean to you. कोई बोलता है इट मीन्स फ्रीडम टू मी, इससे मुझे फ्रीडम मिलती है। कोई बोलता है इट मीन्स लव एंड अफेक्शन टू मी बिकॉज आई कैन गिफ्ट पीपल, आई कैन बाय स्टफ दैट में। कोई बोलता है इट गिव्स मी सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हर एक का रिलेशनशिप पैसे के साथ अलग है, वैसे ही हर एक का रिलेशनशिप सक्सेस के साथ अलग है। सक्सेस इज वेरी सब्जेक्टिव ना। जो ये बच्चे हैं जो नीट वगैरह की तैयारियां कर रहे होते हैं, हमें ये देखना वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, what does it mean to them? Does it mean to them that I'm going to make my parents proud, और मैं ये करूंगा सबको दिखा दूंगा देखो आई वॉज नॉट दैट लूजर, या ये मैं करके मैं वो पैसे कमा सकता हूँ जो मेरे घर में कभी थे नहीं। बहुत सारे रिश्ते होते हैं सक्सेस के साथ, उनके साथ जुड़े हुए, बट ऑल दैट एंड दैट इज व्हाट आई टेल पीपल। आप जब आग लगती है तब आप पानी ढूंढते हैं, आप आग लगे या ना लगे आपको पानी ढूंढ के रखना चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़ी। और वही है रेजिलियंस, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस बिल्डिंग। बचपन में जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, आई शुड हैव बिन अप्रिशिएटेड एंड ट्रीटेड द सेम वे जब मैं फर्स्ट आई थी, तो मेरे लिए फिर वो फेलियर का इतना बड़ा नहीं बना था। पर मैम आई हैव सोसाइटी, हम क्या करते हैं ना, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, इनफैक्ट समहाउ कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, पेरेंट्स की भी ओवरचर्स, सम जेस्चर्स एंड आवर फ्रेंड्स अराउंड, चढ़ते को सब सलाम करते हैं, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, तो वो सोसाइटी का एक नॉर्म ही है। तो वो हमें उस चीज से इनफैक्ट डील करना भी पड़ता है काफी लोगों को, कि जो लाइफ में जो सक्सेस को, ऑब्वियसली वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू associating with people who are doing great in life. So those people who somehow fail to, actualize their potential, and they have that, either inner child is still longing for that gratification, कि उनको भी वो सेल्फ, उनका जो appreciation हो, that they also feel loved and welcome. तो वो चीज तो मैम हमारी सोसाइटी का सेटअप ही ऐसे है कि उसको आप फिर कैसे, मतलब उनको क्या बताओगे? बिकॉज सोसाइटी को बेशक ना बदल बदल सकते, बट आप अपने घर में तो चीजें बदल सकते हैं ना। जब आपके घर में, अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, मदर ऑफ 2 डॉटर्स, तो उनकी एक बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, अचीवमेंट्स में बहुत अच्छी है, और दूसरी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी फिगर्ड आउट मेरी दूसरी बच्ची किस चीज में अच्छी है, और वो तो सिंगिंग में अच्छी है, वो हारमोनिका बहुत अच्छा बजाती है, वो इस चीज में आर्ट में बहुत अच्छी है। तो उसने अपने बच्चे को ये समझाया, सुन बेटा, इट डजंट मैटर तुम्हारी दीदी 98 99 100% लेके आ रही है एकेडमिक्स में, बट तुम्हारा स्ट्रेंथ ये है, सो वुड यू लाइक टू गो इन दिस, और वो गुड इनफ करेंगे। लाइक आप दुनिया नहीं बदल सकते, बट आप अपना थॉट बदले, आपके बच्चे का थॉट बदल रहा है, वो बच्चा अपने फ्रेंड को वही ज्ञान दे रहा है, वो फ्रेंड की, ये तो ह्यूमन चेन बन जाती है। डायनामो इफेक्ट हो जाएगा। या वो एग्जैक्टली, एक इलेक्ट्रॉन को हुआ तो पूरा वो जाएगा आगे तक। हो जाएगा, है ना। सो आप अपने पे देखिए ना, आप क्यों, यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज, व्हाई यू आस्किंग के पहले आप दुनिया बदल जाए फिर मैं बदलूंगा। तो आई फील दैट स्टार्ट विद दी स्मॉल थिंग्स रादर देन। और ये जो कोटा के बच्चे इतने सुसाइड्स करते हैं, या अक्सर बच्चे ऐसे आज मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ काम कर रही थी और मैं उनको बता रही थी, द चाइल्ड वाज रियली रियली वरिड कि अभी क्या होगा एग्जाम में। मैं उनको समझा रही थी कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स मेडिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, बच्चों में। इट शुड नॉट बी देयर देन, बट द प्रेशर इज रियल, बट द कंपैरिजन इज उससे ज्यादा। प्रेशर तो है ही, टाइम नहीं है, बट कंपैरिजन उससे ज्यादा है। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट। बट अगर आपके बच्चे में सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, उसको इम्पैक्ट कम करेगा, बुरा जरूर लगेगा, बैठ के रोएगा, बट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट वुड भी, अच्छा अभी ये हो गया, मैंने रो लिया, प्रोसेस कर लिया, 10 दिन शॉक मना लिया, ग्रीव, आई ग्रीव्ड, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट।
Right? So it's very important. You want to see the change, be the change. Start small. Start with your own household. मैं तो उन बच्चों को एक ही कहूंगा, बिकॉज आई एम टू फॉन्ड ऑफ पोएट्री, तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। सपना Absolutely. क्या है? नए नयन सेज पर टूटा हुआ आंख का पानी, और मरना है इसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। तो वही चीज है कि कुछ सपने अगर मर भी जाते हैं तो जीवन तो है अल्टीमेटली। बुद्धिज्म का वो कॉन्सेप्ट है मैम, क्षणिकवाद का, थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस ऑफ रियलिटी। सो व्हेन एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, सो व्हाट इज ऑल दिस फॉर? और एक्चुअली हमारी सोसाइटी और वो बना रखा, सो प्रेशर ऑफ सक्सीडिंग टू मच, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। सो बच्चों पे एक तरह का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और वो एक साइकोलॉजिकली दे ट्राई टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर फैमिली, देयर रिलेटिव्स। तो वो प्रेशर जब बिल्ड होता रहता है, आई थिंक एक फ्रीडम देनी चाहिए बच्चों को। जो मुझे लगता है कि हमारे जमाने में जब हम थे तो यही था कि या तो अच्छा जो पढ़ने में है, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, दोनों में से एक चीज। आई थिंक वो चीज डिमिस्टिफाई करने की जरूरत है अभी। नाउ आई फील मैम, आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, but I feel engineering was never my. Now I think I shouldn't have done that. I should have rather studied philosophy, because now when I'm studying philosophy and other things, I am finding so much interest in that. तो मुझे लगता है वो एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हर बच्चे का यूनिकनेस वो है ना, कि इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द माउंटेन, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ थिंग। Disappoint you. वो डिसअपॉइंटमेंट होगी, एकदम होगी। तो मैम एक और चीज जो काफी एक सवाल है कि आउटग्रोइंग योर फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट, कि लोग कहते हैं कि जितना इंसान अगर अपने पुराने दोस्त रखता है तो वो काफी अच्छा इंसान माना जाता है। बट कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वी आर ऑन अ डिफरेंट जर्नी, वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ ग्रोथ। कहते हैं ना, अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे जाना है, आप पूरे गांव को लेके नहीं जा सकते हो, आपको वो जर्नी अकेले ही करनी है। तो समटाइम्स even having good cordial relations with your friends and people around you, sometimes you outgrow them. तो आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूंगा, एज अ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई वांट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। So the first and foremost thing is that when we accept people for who they are, then we also accept that they can have different interests from mine, and it is absolutely okay. राइट, मे बी मेरे को माउंट एवरेस्ट पे जाना है और दूसरे को नहीं जाना है, एकदम। तो मैं उसको जहाँ है वहां रहने दूं और मैं चला जाऊं। न मैं उसको जज कर रहा हूँ, न वो मुझे जज कर रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें लगता है एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, वी आर सपोज टू बी टुगेदर, वेदर हमारे वैल्यूज अलाइन हो या ना हो, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उनको वो जिस चीज में है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू सी इज दैट जो हमारे दोस्त है, क्या वो हमारे साथ अलाइनमेंट में है? I want to climb Mount Everest, but they want to do gardening in their backyard. So I will climb Mount Everest and come back and sit with them in their garden and एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, listen to my stories of climbing Mount Everest. तो एकदम। वैसे भी cordial relationships हो सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब पहले जॉइंट फैमिलीज का जमाना होता था और आप और मैं एक छोटे शहर से है, छोटे गांव से है मे बी, सो बहुत चाचा ताया मामा नेबर सब लोग एक दूसरे की जिंदगी में थे। तो आपको सबके पर्सपेक्टिव मिलते थे, आपको दादाजी का भी पर्सपेक्टिव मिलता था, आपको छोटे भाई का भी पर्सपेक्टिव मिलता था, आपको उस मासी का भी मिलता था, आपको इस बुआ। तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट एंगल से आती थी, जो अभी कम हो गई है। सो व्हाट आई टेल पीपल इज दैट ट्राई टू बी फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस। अपने से छोटों को भी दोस्त बनाओ, अपने से बड़ों को भी दोस्त बनाओ, और अपने बराबर के लोगों से भी दोस्ती करो। Somewhere you get guided. My friend, one of my best friends is 52 years old, and I ओके, am लवली। grateful to have them in my life, and they came in my life when I was 17. So they must have been in their 30s. So I was getting the guidance, the stability, the right thing. And my youngest friend right now is 25. So now this 25 से मुझे कुछ सीखने को मिलता है और मैं इसको कुछ सिखाती हूँ। So ये जो राइट, हमारे दिमाग में है, we need to get it out after a certain age.
We Absolutely. need to know that जितना मेरा different cultures से friend circle आएगा, religion से friend circle आएगा, उतना मेरा horizon of knowledge बढ़ रहा है. Absolutely. So I can have people across the borders, my friends. I can have people different who have different ideologies from me, and yet if I am able to have a conversation with me, that means मेरे में tolerance power है. दैट मीन्स मेरे में एक्सेप्टेंस है डिफरेंशिएशन को लेकर. मैंने कि जैसे मैं हूं वैसा ही चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट आई एम इन स्पोर्ट्स, सो आई विल मेक फ्रेंड्स फ्रॉम एथलीट और स्पोर्ट्स कम्युनिटी. मैं कहती हूँ क्यों? देन व्हाट विल यू डू व्हेन यू गो टू अ पार्टी? क्या करोगे वहां? बैडमिंटन खेलोगे? लाइक डोंट यू वांट टू, जैसे अभी आपने बोला मेरे को पोएम्स पसंद है, मैं एक पोएटिक मिजाज का इंसान हूँ, तो आपके साथ मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात कर सकती हूँ और फिर मैं पोएम भी सीख सकती हूँ. Absolutely. Absolutely. How we need to choose our friend circle. No, this is a myth. Older the friends, stabler you are. That is not true. In fact, I feel if you have been holding on to old friends and they don't add value to your life, that means you have an issue. That means you have maybe Please, fear of losing, fear of abandonment, fear of new things, you have anxiety. So yeah, एक narcissism सा एक trait है कि जहाँ मैं I am the superior and everybody is around me, वो सब हो सकता है. But you are a stable, a calm, an aware, a mindful person, you will let them go when they are not helping you. I still have some friends are there who have become homemakers, who have chosen not to indulge in anything else. I can't talk politics, I can't talk anything. I just talk sabzi kya banai hai yaar? Kya bana tha khane? They will still right, be right. my friends. I still have a bond with them. एंड उनको मेरी वो दुनिया तो नहीं समझ आती है. उनको नहीं समझ आता है कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, उनको नहीं समझ आता है मैं ऐसे कपड़े पहन, उनको नहीं समझ आता. बट वो मेरे को बोलते रहते हैं, अच्छा तू लंदन गई थी फिर क्या हुआ था? सो आई टेल देम लंदन की स्टोरीज. So you can still have, if you want to have that bond, you don't have to have same values. आई थिंक बिफोर दैट खुद को एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम शायद बाकियों को भी उस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं शायद, है ना? एक्सेप्टिंग योरसेल्फ from here. या मैम, देयर इज अ वेरी बिग पॉपुलर स्टेटमेंट कि मर्द को दर्द नहीं होता. तो मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता, आप बताएं जरा. आप बताइए, आप मर्द हैं, आप बताइए. मैम होता है, बिल्कुल होता है. तो हाउ डू यू डीमिस्टिफाई दिस कि कहते हैं men should not cry, men are not allowed to express their feelings, it makes them appear as weak. What is the thing? Let's hear from the horse's mouth. Let's hear it from you. मर्द को दर्द भी होता है, डिप्रेशन भी होता है. दिस इज वन ऑफ द रील्स आई मेड वंस. Okay. इंसान है, एनाटमी ऑलमोस्ट सेम है, इमोशन सेम है, ब्रेन सेंटर्स सेम होते हैं, तो क्यों नहीं होगा मर्द को सर? बट इट इज द कंडीशनिंग. देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर सपोज्ड टू बी प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स फॉर अस. सो अगर वो इमोशनली वीक रहते तो शायद वो ना हमें प्रोवाइड कर पाते ना हमारे लिए प्रोटेक्ट कर पाते. फिर उसके बाद जमाना आ गया वॉर्स का, वॉर्स लड़े जाते थे. तो आप सोचते थे कि अ पर्सन नीड्स टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, बट अब ना फिजिकल वॉर्स होते हैं ना वैसा कुछ होता है. अब अगर वॉर भी होता है तो आपका न्यूक्लियर दूसरे न्यूक्लियर को करता है. सो देयर आर नो फिजिकल फाइट्स एज सच कि यू हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग, राइट? सो men have all the emotions as women or any other gender. So it is absolutely okay to show. अगर मेरी जिंदगी में ऐसा मर्द होगा जो रोएगा नहीं, मैं तो उसके साथ रहूंगी नहीं. भाई अगर तुम नहीं रो रहे हो, तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगेगा. तुम्हें मेरा, तुम्हारे दिमाग में है कि रोना इज अ साइन ऑफ वीकनेस. तो एवरी टाइम आई क्राई यू विल थिंक आई एम वीक. व्हाई वुड आई वांट टू बी विद अ पार्टनर हु थिंक्स आई एम वीक? Absolutely. That is बट lack of acceptance of the other person, na? That you think that is your perspective is the only perspective, and that person is that Absolutely. is So, as I said, मर्द को दर्द भी होता है, and it's absolutely normal to cry. In the world of equality today, जहाँ हम feminism की बातें करते हैं, वहाँ पे I still feel patriarchy is like, uptight, and we expect a lot from men. That is not true. That is the reason men get more heart attacks than women, because they don't express their feelings. ये जो men हमारा die by suicide. More men die by suicide. men die by addiction. Men have more
what is that called, sexual dysfunctions than women. Mhm. Their sexual health is more compromised, performance anxiety Mhm. is more. A lot of things Mhm. in men are more because they are not emotionally expressive. So yeah, Absolutely. you need to That's see a where very, you went. very good perspective there. Ma'am, recently this movie was making quite some waves, Animal, and the portrayal of this alpha male and being violent. I mean, what is the society up to? I mean, glorifying such behavior. I don't subscribe to as a male. I don't subscribe to such behavior. I found it very regressive and retrograde kind of you projecting a certain image. What is your perspective on that? Do you think is it right to as Manufacturing. filmmakers? Ji ma'am? Yeah, you continue, finish Yeah, it. yeah. As filmmakers, I mean, don't they have certain responsibility also, not just making money and making content that is because millions of people watch them and somehow subconsciously हमारे स्कूल में मुझे याद है जब हम छोटे थे तेरे नाम मूवी आई थी सलमान खान का वो हेयर स्टाइल सबने बना लिया था नाउ दिस मूवी हैज कम सो somehow we can say that people are free to choose but impact तो पड़ता है जो मूवीज में हम देखते हैं जो हमारे रोल मॉडल्स हैं इम्पैक्ट तो पड़ता है तो आप क्या इम्पैक्ट। कहेंगे मैंने फाइनली कल देखी मूवी, नेटफ्लिक्स पे आ गई ओके इसलिए मैंने देखी, कोई शौक ओके नहीं था ओके मुझे। ओके जो भी, when I watched the movie, the first thing, who is talking about being an alpha? A child who's so emotionally neglected by the father. जिस एब्सोल्युटली बेचारे को एंगर इश्यूज है, जिसको टेम्परामेंट इश्यूज है, उसके मुंह से निकल रहा है कि तुम्हें अल्फा होना चाहिए। मतलब what are our standards? What are our standards? I need to ask that to myself. Forget about filmmaker ने क्या बनाया और हीरो क्या बोल रहा है। बट मुझे ये देखना है कि किसके मुंह से क्या सुन रही हूँ मैं उसका पूरा हिस्ट्री दिखाया। ऐसा नहीं कि अचानक से वो आता है और बोलता है मैं अल्फा हूँ। आप बोलोगे अरे वाह! उसका दिखाया हुआ है कि हाउ जैसे बचपन से वो नेग्लेक्टेड है, उसको टेम्परामेंटल इश्यूज़ है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी किसी से नहीं बनती है और फिर वो आके बोलता है अल्फा ऐसा होता है। आप उसको कैसे मान रहे हो? So more than the filmmaker, I want to ask people to question themselves. You think that is alpha? What is this? What are your standards? उसको तो छोड़ ही दो. Second, I guess movie was a very beautiful depiction of inner child wounds. Movie was a beautiful depiction of abandonment issues. Movie was a राइट beautiful depiction of father wounds. Fathers can inflict these emotional wounds, और चाहे वो बॉबी देओल का हो चाहे रणवीर कपूर का हो, या दोनों फादर बिल्कुल इश्यूज है। एक is fighting for the father and second is trying to protect the father, you know. ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, at the same time we have to see that the money made the most money, when the movie made the most money. अगर हमको ऐसी नहीं देखनी है तो हम क्यों जा रहे हैं हॉल्स में? मैंने तो वेट किया, आपने भी वेट किया होगा कि आएगी तो तब देखेंगे। मैं 3 days बैक आई वॉच 3 days बैक I नेटफ्लिक्स also पे watched देखी it मैंने yesterday. So अगर मैं zoos में नहीं जाती हूँ because I feel that I don't want to contribute in that, तो मैं वो टिकट चाहे वो 150 रुपए को चाहे 1500 को, मुझे जाना ही नहीं है। I want to see animals in the wild. I will not go to the zoo. But now I am talking about अरे बाप रे, पता है ऐसा है वैसा है, और zoo में जाके टच कर रही हूँ शेर को, तो फिर who am I to talk about it? आई डोंट ये जो डबल स्टैंडर्ड्स लोग बना रहे हैं, वो एक फिल्म मेकर है, उसको पैसा बनाने का है, उसकी सारी मूवीज ऐसी ही है, बट सारी एकदम मूवीज कैसे बना रही है? तो ही इज एक्चुअली प्लेइंग ऑन द साइकी ऑफ पीपल। वो तो पीपल एडवांटेज समवेयर आई उठा थिंक रहा है। सोल सर्चिंग की जरूरत है आई थिंक मोर देन अल्फा he is an insecure man who's trying to project himself as an alpha. The definition of alpha has to change. Change, change. You have to see, and you need to ask these important questions to yourself before you ask somebody else. In that movie, nowhere has he shown that he's the hero. We gave him that khitab of hero. Yeah. तो वो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। उसमें तो बस एक दिखाया हुआ एक आदमी जिसको इमोशनल नेग्लिजेंस इतना ज़्यादा, इमोशनल हर्ट इतना ज़्यादा है कि वो लेफ्ट राइट वो चीज़ें कर रहा है। द लड़की हू लीव्स हर एंगेजमेंट एंड गोज़ देयर, व्हाट वाज़ शी डूइंग देयर? वो इतनी सबमिसिव क्यों थी भाई? अगर ठीक है, एवरीबॉडी यू शुड नॉट लाइक वो दूसरी लड़की आई थी जिसको बूट लिक का बोला। ओके, Absolute मतलब ठीक है, nonsense.
इसने तो वो बोला जो ये है, ही इज अ टॉक्सिक मेल, इसने बोला, बट व्हाट वाज शी डूइंग देयर? तो क्वेश्चन तो सबकी पर्सनालिटी पे आना चाहिए, क्वेश्चन तो हम्म, सबकी सेल्फ एस्टीम पे है, क्वेश्चन तो अनिल कपूर के सेल्फ एस्टीम पे भी, उस कैरेक्टर में माँ की हम्म, सेल्फ एस्टीम पे भी है, बहनों की सेल्फ एस्टीम पे भी है, everybody's हम्म, self-esteem has been shown in that movie. But what I'm saying is that yes, we have a social responsibility, we should, but if I am choosing not to, so you should make sure na you don't watch such content and make them fall. But then you हम्म. are watch such content, you are giving them money and then you are saying don't. ये तो double standard है I think मुझे the नहीं. society, our leaders are a reflection of us only. I mean, Absolutely. society chooses the leaders only, you know. So the kind of psyche and the social consciousness that we as a society have, that is the kind of leaders are going to have. Absolutely. Absolutely, So that's true. थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग तो सोल सर्चिंग तो हम सबको भी जरूरत है. करनी है एज एन ऑडियंस, हमें भी देखना व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट एम आई प्रमोटिंग एंड वाचिंग. आई अंडरस्टैंड दैट आई एम देयर आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू बी माइंडफुल, but I will be mindful if I am mindful in my personal life as well. If I am Absolutely. not mindful, I cannot be mindful online then somewhere kahin na kahin to dikh hi jayega that I'm not being mindful. So putting a lot of pressure on filmmakers, they are actually the depiction of our society. They do some research, मोटा मोटा ही पकड़ते हैं बेशक, देसी की क्या बिकेगा यार वही बना देते, लोगों को यही चाहिए. एंड जब सैम इतनी सारी मानेकशॉ को कोई, सैम मानेकशॉ की आपने कलेक्शंस देखी होंगी और एनिमल की. I mean, such a legendary leader. That is a leader we should be following and see whom we are like. So we clearly have the answer there. हाँ, मिल रहा है मुझे जवाब. वे अब उन्हें कहते हैं कि जब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, ये सब मेरे पे पॉइंटेड है, तो पहले खुद से तो व्हाट आर यू डूइंग. यू कांट कीप सेइंग दैट. कौन वो लोग हैं जिनको रोल मॉडल्स और हीरोज इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया, द पीपल जिनके घर में रोल मॉडल्स नहीं थे, दे हैव सीक आउटसाइड. फिर सलमान खान किसी का हीरो बन गया, किसी का शाहरुख खान, किसी का एपीजे अब्दुल कलाम, किसी का ट्रम्प, किसी का बैरक ओबामा. बट अगर उनके घर में हीरोज होते, घर में वो स्टेबिलिटी दिखने को मिलती, तो वो बाहर हीरोज क्यों ढूंढते, इंस्पिरेशंस क्यों ढूंढते, और मैम क्यों मेरे को उनको कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग का शायद बहुत ज्यादा रोल है. क्योंकि बिल्कुल. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इन प्रेशर सिचुएशंस, वी डू नॉट मेक आवरसेल्व्स, वी रिवील आवरसेल्व्स. तो वो जो हम बने होते हैं ना बचपन में, जो हमें पेरेंटिंग या जो वैल्यूज इम्बाइब होती हैं, बिकॉज वी पिक अप cues from our parents, from our near and dear ones. So I think that is what gets magnified when we are in those stressful situations. Those people who indulge in corruption and all these things, I think that is a manifestation of what is inside them. वो उनके अंदर जो निकल आता है बाहर, कि how strong are, it is a sin to be silent when it is important to speak. So that courage comes only when you have it in you. Recently एब्सोल्युटली. मैम हमने देखा यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो नेटो का एडवांस हो रहा है. अब एक देयर इज अनदर नेटो आई वाज रीडिंग यस्टरडे, नेटो डेटिंग. So that is not attached to an outcome. So that is a new term, not attached to an outcome. This casual dating, Tinder wala jo duniya hai. What is this? I mean, where is the youth landed? Where is that, romantic love of the 70s and 80s and 90s? बट How, where? जब 70s 80s 90s रहा नहीं, why should we have romance like that? Uh, yeah, हाँ. I agree, but true. There is always this fascination for the pristine and those things we always romanticize. Still, those songs of those years, they still, strike a chord with us. So, आपका क्या perspective है इस पे मैम? ये मुझे जो लगता है जो जिस एरा में पला बड़ा होता है उसको उस टाइम के गाने अच्छे लगते हैं, उस टाइम का रोमांस अच्छा लगता है. थोड़े दिन पहले मैं ऐसे बैठी हुई थी गार्डन में, गार्डनिंग कर रही थी, अचानक से मेरे दिमाग में चल रहा है दिल तो पागल है दिल दीवाना है. नाउ दैट वाज द टाइम जो मेरे टाइम का होगा. राइट, अभी अगर किसी छोटे बच्चे को सुनाएंगे वो कहेंगे ये क्या है, बट ये कौन किसी सा के गाना है? किशोर कुमार के थे या जगजीत सिंह के टाइम के थे, तो वो उस टाइम के होंगे. राइट, so I guess we all have these associations, as I said, in the first 7 to 10 years of my life, and that is what
the base, that is what becomes the foundation. But now if I would want my child to go dil to pagal hai, तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को क्यों करना दिल को पागल, मैं तो देखूंगा realistic क्या है. Right? Our Hmm. movies, our television, our society really has big impact on us. It gives us our personality in younger years. That is the reason जो parental coaches होते हैं वो कहते हैं अपने बच्चे को अपने 3 से 5 साल तक zero screen time दे दो, टीवी मत दिखाओ, Hmm. और जो दिखाओ पहले खुद देखो, इज इट गुड फॉर माई चाइल्ड, तब दिखाओ. Hmm. There's a reason for all these things, they say it. Now the important thing is that मुझे नहीं लगता क्या फर्क पड़ता आप टिंडर पे मिले, आप हिंज पे मिले, आप बम्बल पे मिले, या आप एक पार्टी में मिले, एज लॉन्ग एज आप किसी से मिल रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग अ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. You want to be in a But situationship, where, you but where is the meaningful conversation, ma'am? There मीनिंगफुल is no. कॉन्वर्सेशन कैन बी एनीथिंग. नो से जब हम लोग मे बी हमारा जो जनरेशन था, जब वो किसी से मिलता था तो उनको लगता अब इससे शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है. एंड दैट इज नॉट टुडे, एंड दैट इज द रीजन देयर आर सो मेनी अनहेल्दी Hmm. relationships. Meaningful conversation can be just being in that moment having a conversation about your interest, or about something important, about global warming, or about maybe sex. It can be any meaningful conversation. I don't care whether people are in situationships, polyamory, casual, serious, one time, whatever. As long as you're honest, and as Mhm. long as Exactly. you That is know, the catchword. Honesty is own, the catchword here. yeah, Honesty is the catchword. as long as you know what you need and you communicate to the other person. Don't go on Tinder keeping in mind that I might get married, or don't go on Tinder Mhm. thinking that I'll have one night stand. Anything can happen, any magic can happen, but ask yourself that what am I ready for? And communicate to Mhm. the other person. Tell them that, hey, listen, I'm here to have good fun. If you and I align, we will have good fun. We'll have Absolutely. maybe one night stand or a casual relationship, situationship, whatever. But don't tell people, oh, I'm looking for a serious relationship. You are the one. I'm talking to you. After 10 days, you're ghosting them. Nonsense. Absolute पता nonsense. चलता है यार, प्यार में भी वो अलग टाइम था जब पहली नजर में प्यार था. दुनिया सिंपल थी, अभी दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, गिव टाइम टू योरसेल्फ टू नो द पर्सन. It is absolutely to step back when you know this is not the person good for me. Mhm. Mhm. Step back rather than going in people pleasing में, सोसाइटी प्रेशर में. 10 बार डिवोर्स कर लो बेशक, बट एक शादी में ऐसी में मत रहो जहां पर रोज जूते, लात, Abuse. मार, Abuse. तमीज पूरा. खा रहे हो, Yeah. जहां पे रोज अपने मन को मार रहे हो. राइट. सो Mhm. या, डेटिंग की दुनिया में ऑलवेज टेल पीपल दैट इट डजंट मैटर वेयर यू मीट, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू वांट, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट, एंड एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू डील विद रिजेक्शन. पता चले रिजेक्शन मिला That is नहीं. the big question. That is the big question. Anxiety, depression, betrayal, trauma, all this come after this only. Because we are exposing ourselves to too many variables. Yeah. Because that ways, I mean, the alignment of thoughts and that thing is slightly, little, it becomes a little off key. थोड़ा सा यहाँ पे gray matter ज़्यादा है. Lot of Hmm. gray shades of gray here rather than, less blacks and whites. And ma'am, Yeah. before we finally wrap our conversation, Hmm. uh, how to break this trauma, this stigma around mental health conversations? People still don't come out openly and go to psychologists, and they don't still feel that thing that log kya kahenge and all these things. How can we break that, that stigma attached to their mental health? Because it is as it's चोट लगी है तो दर्द हो रहा है, लेकिन अगर आपको इमोशनल पेन उसका भी तो दर्द होगा ना. तो talk about it. How can we break this taboo? It's a difficult conversation. It's a difficult conversation, and it gets more difficult when we have the stares and gazes around us, judgment around us. So, what I tell Absolutely. people is share your own journey with people. Tell them if you have been in therapy, tell them that, hey, listen, I've been in therapy. Make it a casual conversation. जब किसी को Mhm. ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना तो कहता मैं तो ऑर्थो को दिखाने जा रहा हूँ. वैसे ही बना दो when you are walking out of your house and going for a therapy session or a psychiatry appointment. Just tell them I'm going to see this doctor. Right? In smaller towns, we see still people consult neurologists than psychiatrists. That is the kind of Mhm. stigma we have. Like I've grown up in Jammu, and you also must be knowing Dr. Sushil Razdan.
I guess Yes, it's a yes. neurologist. But everybody with any related issue used to go to, appointment nahi milta tha. One is lack of awareness. People just don't know who can they go to if they have an issue. So talk about it. I have always talked openly about my anxiety, depression, suicide ideations, passive aggression, very openly to people, and tell them, and then they're like, oh, she was going through this and now she's this, so there is a room for improvement, room for getting better. But now I went through my journey and I'm quite about it. I owe Mhm. it to contribution. There's a part of me which completes me. That is when I contribute back to the society. And you are a sick, you would know it better than anybody else how you guys contribute back in the society. It's a very important factor when you don't do that. So, in this, I would say that, as I said, you want to see the change, be the change. Don't put that pressure on people that people should do it. You start with it. For example, being in Akhnur, you are starting these conversations. So, obviously, ज्यादा नहीं 10 लोगों को तो आप बदल पाएंगे ना तो वो Absolutely, 10 ma'am. को बदलेंगे वो 10 और तो चेन बन गया ना बढ़ता गया Mhm. there was a Mhm. time we did not have these conversations like this today like I started my career in my early 20s in this it was so difficult to get a client to the studio. Absolutely. तब तो लोग आते नहीं होंगे बिल्कुल. So that means Mhm. awareness. I have seen a graceful awareness, graceful change. And I always feel that more you keep talking about it, you do your bit, leave the rest to Almighty. Let's see Mhm. what happens. Ma'am, I also I have been aiming to create awareness on a lot of these issues that affecting the society. For example, drug de-addiction is something that I really want to take it further, and also this suicidal issues, female feticide that is happening. Apart from Hmm. that, the mental health, and plus the issue of autism, child autism. Hmm. That is also, I mean, parents don't know, they don't accept initially that what is it about. So all these things, I think. The more they are talked about, the more they are spread awareness about. I think लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में demystification होगी. Because Yeah, बात करने से ही कहते हैं ना बात तभी बनेगी, बात की जाएगी तब. तो absolutely. आइडिया तो यही है मैम. तो with people like you who are doing great work in the field would like to take this message forward and forward. And ma'am, before we conclude, happiness क्या है मैम? Ending on a positive. What is happiness? Let's leave people with some smiles and cheerfulness. What is happiness? It's an umbrella. It's an umbrella you're holding on your head. Whatever you put inside it, that makes you happy. राइट इट Wow. कैन बी दैट किसी के साथ एक कप चाय पी ली आपको खुशी मिली आपने वो फेवरेट ड्रेस पहन ली आपको खुशी मिली आपने कहीं पे 4 पैसे कमा लिए आपको खुशी मिली इट कैन बी एनीथिंग सो when we ask people that why are you in therapy and they're like because I want to feel happy. I'm like it's an umbrella. What do you want to do in being happy? What makes you happy? And then they would say that I want to travel, that makes me happy. So I want to cook that favorite meal, I want to be able to exercise, or I want to make love, or I want to do, there are so many things. It's so subjective. What happiness means to each person is different. So one needs to figure that out what actually makes me happy. A lot of people have never experienced it, so they might not know it. I tell them, बाहर जाओ 10 चीजें करो 10 में से देखो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली इट्स वेरी Mhm. इंपॉर्टेंट जब मुझे पता ही नहीं है नीला कलर क्या होता है मुझे कैसे पता नीला मेरे लिए अच्छा है बुरा है पहले मैं जाके आइडेंटिफाई करूँ नीला क्या है फिर मैं उसको पहन के देखूं फिर मैं पिंक ब्लू ऑरेंज के साथ उसको पिंक ग्रीन ऑरेंज के साथ उसको कंपेयर करूं फिर मुझे पता चलेगा वेदर ब्लू इज माई कलर और नॉट so we need to do that we need to expose ourselves to these situations to these things and धीरे धीरे destination is like destination to hai but I guess on the way what you pick up that is what makes you happy and automatically when you are at your destination you will be happier. I'm Right, ma'am. sorry Right. I did not even answer what were you No, no. what you were expecting. This is a really good answer, मैम. वो I think राज कपूर का वो गाना ना किसी की जिंदगी में कुछ जीना इसी का नाम है, something like that. I think that is, I think एक और चीज है मैम, हम फेलियर से बहुत डरते हैं सोसाइटी में ना कि we don't try at all different things because something that is foreign to us as a thought. तो मुझे लगता है कि what I believe कि one should fail and fail again and keep failing because we were not meant to go into our graves in three-piece suits. We were meant to go all rumbled up, all battered, bruised, dirty. That's when we actualize our potential. जब हम
अपने आप को तपाएंगे नहीं तो कैसे वो लाइट जो हमारे अंदर शायद वो गॉड ने दी है वो कैसे बाहर आएगी? बाहर तो आएगी। वही है, हैप्पीनेस वही है कि अपना अपना पोटेंशियल, जैसे मैम ने कहा, अपना पोटेंशियल पहचानो, उसके ऊपर काम करो और गिव बैक टू द सोसाइटी इन विच एवर वे यू कैन। अगर आप डस्टबिन में वो रैपर डाल रहे हैं तो वो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लिटरिंग, बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें, अब पानी बह रहा है, आप वो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, तो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, आई थिंक दिस आर द कंट्रीब्यूशन। So, ma'am, it was really lovely. I think lot of insights, lot of in-depth, insights into the world of mental health, world of emotional well-being. हमारे अंदर क्या चलता है, वो सब चीजें. Even I had a really good time listening. I was all listening patiently, and there was so much revelations for me. So, concluding, any message for the audience out there, wider audience across the globe, uh, any concluding message you would like to give? I would just say that, emotional health, mental health is as important as physical health. If you're exercising your muscles, you need to exercise your emotions also. Build resilience. And resilience building is not a one day job. So be patient with yourself. Be kind to yourself. You can be so many things in the world. Just be kind. Learn kindness. Wow. Be kind. Don't do anything else. You don't want to contribute in any way. Just be kind. That will automatically contribute a lot. And I wish you all the best. Take care of yourself. That's a lovely message. If you can be anything in the world, be kind. So, ladies and gentlemen, be kind to your fellow beings and spread the message forward and remove the stigma around mental health. And if you need any help, I think you can consult ma'am. Ma'am is a very very certified, and she's an acclaimed psychologist doing exemplary work in her field for so many years. So, thank you so much, ma'am. It was indeed a pleasure having you on the podcast. We would love to have you again on our show, spread more light into the world through the lighthouses like you. And yeah, so Thank you so much now. pay my regards to everyone at home, ma'am. Thank you so Absolutely much. right with that. Thank you Thank you. so much for doing amazing work. Keep doing it. Keep spreading the light. And yes, we should do something again. Maybe we can do something in person in Jammu for schools or Absolutely. colleges or anything. आप बस I'm पता all for करो, it. बताओ. I'm all Let's I'm figure all that for out. it. I'm all है for ना? it. आप I'm all देखो for it. वहाँ पे ज़रूरत है, क्या है जो मेरे भी रिसोर्सेज होंगे, we can talk to them and all of that. Sure, We can do some nice work, contributing to the place I sure. have grown up in. Why not? Ekdam, ma'am. Ekdam, ma'am. That's the idea and that's the objective. Thank you. ठीक है. Thank you so much, ma'am. So, ladies and gentlemen, this was Aruba Kabir, ma'am. I mean, sharing her insights with us on our podcast with Champions episode 8. We will be back with another